beautiful activities. Along with that, we will gather some knowledge on the chapter. Which chapter? Chemical effects of current. Everybody write down. So, sweet students, shabash. Chemical effects of current. This is the thing. शाबाश बच्चे, सभी बच्चों को सबसे पहले शाबाश, बहुत बहुत शाबाश, because in such a severe cold you all here in the classes well dressed. That's very nice. Okay, so have you seen what I have written? Chemical effects of current. So all we should know, first of all, what is this current is, what I mean by chemical effect, and what are the related terms with it. Okay, so first the teacher is telling about electric current. Electric current. In short form, you can say only current. So my students should be familiar with certain basic facts. Number one, symbol of the electric current is I. This is its symbol. I represents the current in all the books. Second thing, everybody knows when there is some physical quantity, we measure it. For example, if I have this marker with me, I can tell it is 12 centimeter long. So to represent its length, I needed the unit centimeter. In the same manner, when I have to measure the current, I need a unit in which electric current can be measured. So I is what? Symbol of current. But electric current itself is measured in. I is measured in unit. Which unit? That unit you should remember. Capital A is the symbol and it is called ampere. Ampere. Another learning point. How can we know that in a particular wire 20 ampere current is flowing or 30 ampere current is flowing? For that, there is a measuring device which measures the current, and its pointer tells us how much current is flowing. Or if it is digital, the value of the flowing current will come on the display of the meter in the form of digits. Okay, mathematical digits. What is the name of that device? Your attention. That device is represented with capital A in the circle, and it is called ammeter. Ammeter. Current measuring device. Current measuring device. Or you can say instrument. And for a memory tool, let me tell you how this word they have made. This ammeter is made by combining two English words. One is ampere and plus another is meter. You know ampere, whose unit is ampere?
Electric current unit is ampere, and meter means to measure. So clubbing the two words together, they have created a new word, ammeter. So if anybody will call you with what instrument you can measure the electric current, so your answer should be ammeter. Okay? Learning point 4. Learning point 4. What this current means? ये करंट होता क्या है? आप सभी देखो बच्चे हैं, करंट का मीनिंग होता है धारा. इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज फ्लो करेगी. जैसे हम बोलते हैं द करंट इन दिस रिवर इज वेरी इंपैक्टफुल, फोर्सफुल, इट इज फ्लोइंग स्विफ्टली. नदियां में जो धारा है बड़ी तेजी से भाग रही है. तो धारा से वर्ड उठाया इन्होंने करंट. लेकिन हम कोई नदी के बारे में तो पढ़ नहीं रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई चीज फ्लो करेगी, लेकिन कौन सी चीज फ्लो करेगी? ध्यान से सुनो. वो चीज होती है चार्ज. तो आपको क्या बोलना है? करंट. शाबाश. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कोई बच्चा बोलेगा सर इसका मीनिंग क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? तो उसको बताना पड़ेगा कितना चार्ज फ्लो हो गया, हाउ मच चार्ज इज फ्लोन, टेकिंग हाउ मच टाइम टेकन. करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन. नाउ वन स्टूडेंट कैन क्वेश्चन मी, सर टाइम तो ठीक है हम घड़ी से देख लेंगे, लेकिन ये चार्ज क्या चीज है? व्हाट इज दिस चार्जेस? तो बताएंगे चार्ज वो चीज होती है जिसका इलेक्ट्रिक करंट बना होता है. तो आप बोलोगे चार्ज इज द constituent of इलेक्ट्रिसिटी. बिजली जिस पार्टिकल की बनी होगी तो उसको चार्ज बोलेंगे. अब यहां पर बच्चा बोलेगा सर फिर चार्ज और टाइम में फर्क क्या हुआ? ध्यान से सुनो सभी बच्चे. अगर चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो उसको चार्ज ही बोलेंगे. लेकिन मान लीजिए वो किसी किसी चीज में फ्लो कर रहा है, कॉपर की वायर में फ्लो कर रहा है या किसी गोल में फ्लो कर रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग तब उसको करंट बोलेंगे. तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर चार्ज रेस्ट पर हो, रुका हुआ हो, तब उसको करंट नहीं बोलेंगे? तब नहीं बोलेंगे, करंट नहीं बोलेंगे. तो ये पॉइंट सारे नोट कर लो सभी बच्चे. करंट इज नॉट चार्ज. करंट इज नॉट चार्ज, बट इट इज चार्ज फ्लोइंग. जब तक चार्ज मूव करेगा तभी उसको करंट बोलेंगे, वरना उसको चार्ज ही बोलेंगे. शाबाश. तो टीचर ने कितने लर्निंग पॉइंट बताए? 1 2 3 4 5 6. 6 लर्निंग पॉइंट बताए बेटे, सिर्फ एक अकेले पॉइंट को बताने के लिए. करंट. जितने बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, राइट हैंड. फीडबैक, आई नीड द फीडबैक. शाबाश. लेजी नहीं बच्चा बनेगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज रेज योर राइट हैंड. बेटे जिनको समझ आ गया अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे. लेजी है बच्चे. तो रसल वर्ड को शाबाश. काफी सेक्शन, लेकिन कुछ बच्चों के कैमराज स्टिल आ रहे हैं. तो वेरी नाइस. डाउन 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 डाउन. थैंक यू. अब हम इसको मेमोरी में डालते हैं. एक और चीज पढ़ते हैं. इस बार टीचर हेडिंग दे रहे हैं चार्ज. सेंटर में ही चार्ज लिख दिया टीचर ने. तो इसकी नॉलेज को स्टडी करेंगे पॉइंट वाइज. नंबर 1, जो चार्ज होता है बेटे, चार्ज, उसका सिंबल क्या है? सिंबल है क्यू. और चार्ज को बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे चार्ज वो चीज है जिससे बिजली बनी होती है.
यानी अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज अ चार्ज, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चार्ज का यूनिट क्या है, इसको मापते कैसे हैं, तो वो यूनिट है बेटे सी से लिखते हैं, सी से, क्यूलम, COULOMB, क्यूलम। फोर्थ लर्निंग पॉइंट, चार्ज कितनी तरह का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, टू टाइप्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्ज पोलैरिटीज कौन सी हो सकती हैं बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड कहना चाहिए, टू टाइप्स। फिफ्थ लर्निंग पॉइंट, शाबाश, फिफ्थ लर्निंग पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान से देखें। आखिर इस चार्ज को बनाते कैसे हैं, योर अटेंशन। मान लीजिए ये एक एटम है और उस एटम को हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स गिवन, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, ओके। इसी तरह से नंबर 6, एक एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करा टीचर ने, माइनस, यहां पर प्लस करा, देखो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर कर दिए, तो सामने हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके। और एक बात, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने भी दुनिया में सारी तरह के पॉजिटिव चार्ज, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, शाबाश। वो क्या होता है, ध्यान से सुनो, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को स्पेशल नाम दिया गया है, क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज वाले, ये वाले जो फिफ्थ पॉइंट वाले टीचर ने बताए हैं, तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, केटायन। एक ध्यान से देखो बेटे, टीचर ने केटायन के स्पेलिंग में कैसे लिखी हैं, ताकि मेरा बच्चा भूले ना। पॉजिटिव को मैंने प्लस बना दिया और साथ के साथ इट इज सर्व एज ए टी, स्पेलिंग में टी, और टी को मैंने प्लस बना दिया, ताकि आपको याद रहे टीचर ने बोला था पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोलेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स को, ओके। तो बच्चा बोलेगा सर ऐसे ही फिर नेगेटिव आयंस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयंस को, सभी बच्चे याद रखें, नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायन, एनायन। तो सर इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे आयंस, आयंस, ओके। आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आयंस आर, तो यू विल से देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आयंस, वन इज एनायन, अदर इज केटायन। एनायन वाला नेगेटिव, केटायन वाला पॉजिटिव। और टीचर ने केटायन के लिए मेमोरी टूल दिया, देखो प्लस डाला है, ओके। कोई बच्चा बोले सर आप केटायन की एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल। केटायन की एग्जांपल देखो, ये होती है, देखो एन ए के ऊपर प्लस लगा दो, छोटा सा Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन। कोई बच्चा बोल सकता है सर आप नेगेटिव आयन की एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल। देखो Cl के ऊपर नेगेटिव लगा दो, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या है, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ओके। एक बात और याद रखनी है बेटे सभी बच्चों ने, कौन सी, योर अटेंशन। अगर यहां पर मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोड खड़ा कर दूंगा, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी से कनेक्ट करा होगा, उस इलेक्ट्रोड को बोलूंगा
कि आप इन दोनों में से किस किस को अट्रैक्शन शो करोगे। अट्रैक्शन तो हमने देखा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड केटायंस को अपनी तरफ खींच लेता है, केटायंस को अपनी तरफ। तो केटायन खुद कौन से होते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चीज किसकी तरफ खींचती है हमेशा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। व्हाई, क्योंकि डिसिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचता है मैग्नेट में, ऐसे ही केटायंस आर पुल्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि केटायन खुद क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींचेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, जिसकी तरफ केटायन जाए उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, कैथोड। अब यहां गलती मत करना, केटायन खुद पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, लेकिन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोड ने केटायंस को वेलकम करा, तो केटायन को वेलकम करने के लिए उसको खुद नेगेटिव होना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज अपोजिट चार्ज पोलैरिटी अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए केटायंस को वेलकम करने के लिए इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया कैथोड। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो दूसरा भी चीज होगी फिर। आई सेड व्हाट यू मीन। तो बच्चा मेरे को बोलता है सर आई मीन टू से कि जो आपका एनायन है, एनायन जिसको आपने नेगेटिव बोला था, वो भी तो एक इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होएगा। तो मैंने कहा बेटे नेगेटिव को कौन सा इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट कर सकता है, तो योर आंसर शुड बी सर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बैटरी से लगा हुआ, ये नेगेटिव है, अपोजिट पोलैरिटीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोड ने एनायंस को अपनी तरफ वेलकम करा, दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रोड इज नेम्ड एज एनोड। एनोड, ओके। तो सभी बच्चे यहां पर गलती नहीं करेंगे, वेरी प्रिकॉशनरी स्टेप। मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं पेपर में। पॉजिटिव आयंस कॉल्ड केटायंस, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैथोड, ओके। नेगेटिव आयंस पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, वो रहेंगे अनायंस। लेकिन अनायन किस रॉड की तरफ जाएंगे बिजली की, एनोड की तरफ, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा चार्ज के बारे में इतने सारे लर्निंग पॉइंट्स। हाउ मेनी लर्निंग पॉइंट्स, 6, 7, 8, 9, 10 लर्निंग पॉइंट्स बताए। 10। सेंटर में क्या लिखा, चार्ज। शाबाश शाबाश, कुछ बच्चे समझदार हैं, दे आर जॉटिंग डाउन, वेरी गुड। अब हम इसको भी स्टोर करते हैं। एक बात और देखो बेटे जल्दी से, फिर हमने आगे बढ़ना है। योर अटेंशन, टीचर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास ये है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो पानी लग रहा है, आई फील इट वाटर। लेकिन लेट मी टेल यू कि इस गोल पानी के अंदर मैंने नमक डाला हुआ है, नमक, ओके। तो अब इसको गोल दिया अंदर, ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट बन गया, क्योंकि नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिकली, ओके। तो अब इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉल्ट, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉल्ट। जैसे टीचर ने अभी अभी एग्जांपल क्या दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच नमक का एक पिंच ले लिया,
एंड पुट इट इनटू वाटर, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, नमक को पानी में डाल के घोल दिया, इट विल बिकम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब एक बात और सुनो, शाबाश, योर अटेंशन। कोई बच्चा बोलेगा सर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा उसका फार्मूला होता है NaCl, NaCl। Na stands for sodium, Cl stands for क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का कलेक्टिव बन गया सोडियम क्लोराइड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी अटेंटिव। कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो आपने नमक डाल दिया पानी में, तो उसमें ये सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। योर अटेंशन, मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना बेटे, मैं बोलूंगा अगर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, तब वो दोनों सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़े रहेंगे, तब वो NaCl के पार्टिकल होंगे। ये भी पार्टिकल NaCl, ये भी पार्टिकल NaCl, ये भी पार्टिकल NaCl, और ये कंटेनर में सारे पार्टिकल NaCl, तब इस इलेक्ट्रोलाइट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में बोलते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट की कोई और फॉर्म भी होती है? यस, होती है, आयनिक फॉर्म। सर क्या मतलब? जब ये सोडियम और क्लोराइड आपस में अलग अलग हो जाएं, जैसे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में दो तरह के पार्टिकल हों, एक तो Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं सॉल्यूशन में, और एक ऐसे क्लोराइड 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 क्लोराइड। तो अगर ये ब्रेकअप होकर होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में होता है, तब इसको आयनिक फॉर्म बोलते हैं। आप सभी को पता है सोडियम को हम बोलेंगे केटायन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और Cl नेगेटिव को बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। और ये किसकी एग्जांपल होगी? एनायन की। और Na पॉजिटिव जो कि केटायन है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम आयन, वी कॉल इट सोडियम आयन। अब बच्चे को जब सारी बात समझ आ गई, तो वो मेरे से बोलेगा सर इनको आपस में कैसे चेंज करते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर का सार है, ध्यान से सुनना बेटे। अगर मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर नमक को घोल दिया, और नमक को मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कर दिया, ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए बैटरी के साथ, और इसमें से करंट निकाला, और मैंने देखा कि ऐसा करने से इस कंटेनर में डाला हुआ मॉलिक्यूलर सोडियम क्लोराइड आयनिक फॉर्म में बदल जाता है। ध्यान से सुनो, करंट के पास होने से क्या होता है? करंट के पास होने से मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे? किसमें कन्वर्ट हो गया? आयनिक में, आयनिक फॉर्म। कब? जब करंट पास करेंगे। तो इस मैकेनिज्म को कि यहां से यहां कन्वर्ट हो जाना बिजली की पासेज से, उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, यानी ब्रॉडर सेंस में यू विल से by the passage of electric current we converted the electrolyte from its molecular form to ionic form। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और जो ये वाला होता है ना बेटे, आयनिक फॉर्म वाला,
इसमें से बिजली पास होने लग जाती है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखो, ये मेरे पास एक और गिलास है, इसमें मैंने शुगर का सोल्यूशन डाला, चीनी का। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अभी आयन के फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और ये मेरे पास एक एलईडी वाला बल्ब है छोटा सा। अगर मैं इसकी दोनों तारों को यहां डिप करूंगा तो ये टच करने के बावजूद भी बल्ब नहीं जगता। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक नमक वाला सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट आयनिक फॉर्म में आ जाता है, इट बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं दोनों वायर्स को जब इसमें कनेक्ट करूंगा पानी में, ये घोल में, तो अब इन कंडक्टिविटी बन जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इन आयनिक फॉर्म कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और ये एलईडी जलना चाहिए। देखते हैं करके। ये देखो, एलईडी ग्लो होने लग गया बेटे। इसको बाहर निकालूंगा तो ये बुझ जाएगा। यस। फिर से देखो, मैं बोर्ड के कंट्रास्ट में दिखाता हूं। देखो, ये दोनों किनारे मेरे पास रेड वायर्स के हैं। रेड वायर्स के आपस में दूर दूर हैं। बट व्हेन आई एंड डिप बोथ एंड्स ऑफ द वायर्स, इस इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास हो गया और ये एलईडी ग्लो करने लग गया व्हाइट कलर का। देखो, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, आयनिक फॉर्म में। अगर यही मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता तब बिजली नहीं फ्लो करती। ओके, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइट इन आयनिक फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट पे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट करवा दिया जाए पहले, फिर उसमें से बिजली गुजर पाएगी। गॉट इट। अब कोई बच्चा बोलता है सर ये इसको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, इसका पूरा मैकेनिज्म बताओ, ये कैसे फ्लो करता है। ध्यान से सुनना। ये मेरे पास कंटेनर था जो मैंने अभी दिखाया आपको, और इसका वाटर डाला हुआ है। फिर इसके अंदर ये सोडियम के केटायंस हैं। ओके। और कुछ मेरे पास क्लोराइड के एनायन हैं, क्लोराइड के एनायन। राइट बेटे। अब होगा क्या, तो मैंने इसमें से बिजली की तार डिप कर दी थी। तार डिप करी। आगे मैंने ये एक सर्किट बना रखा है, देखो, उसमें बैटरी लगा रखी है, बैटरी एलईडी के साथ। ओके। तो बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे ऐसे लगा दिया। लॉन्गर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो इसको मैंने इधर कनेक्ट करा, और नेगेटिव को इधर। ओके। नेगेटिव स्मॉलर वन, ये पॉजिटिव। अब होगा क्या, इसी वायर के रास्ते में मैंने एलईडी लगा दिया, ये छोटा सा बल्ब बोल देते। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो जैसे इधर मैं नेगेटिव ले गया, इस वायर के पास नेगेटिव, ये किसको अट्रैक्ट करेगा। अभी टीचर ने समझाया, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स जितने भी सोडियम आयंस हैं वो इधर को भागेंगे। सोडियम आयन सारे इधर को भागेंगे, यानी केटायंस। और ये वाले वायर देखो, नीचे बैटरी से पॉजिटिव 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 यहां पर पहुंचा, वो किसको खींचेगा, ये पीले येलो कलर वाले क्लोराइड आयंस को खींचेगा अपनी तरफ। ओके। तो दैट मीन्स क्लोराइड आयंस विल गो टू दिस साइड। इस तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो चुकी है। इसीलिए हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा, एलईडी ग्लो करने लगेगा। शाबाश। फिर से देखो, टीचर ने एक बैटरी ली। कोई बच्चा बताएगा सर कैसे बैटरी। ये देखो बैटरी, इसमें से मैंने दो वायर्स निकाली। याद रहे, जो रेड वायर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो ब्लैक वायर होती है वो नेगेटिव। इन दोनों वायर्स को मैं ले गया और इसमें डिप कर दिया।
तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो दोनों रेड वाली डिप करी थी, दोनों रेड वाली डिप करी है ना, ये गलती से दोनों रेड लगी हुई है, एक ब्लैक होनी चाहिए एक रेड होनी चाहिए, बस वो लगाने में गलती हो गई है, कभी टूट गई होगी तो इसलिए ब्लैक नहीं मिली होगी तो मैंने रेड लगा दी होगी। एक ब्लैक होनी चाहिए एक रेड। जब दोनों को मैंने ऐसे डिप करा तो जो मैकेनिज्म मैंने बोर्ड पे समझाई, अकॉर्डिंग टू दैट दिस एलईडी इज नाउ ग्लोइंग, देखो ग्लो कर रहा है, ओके। और उसकी ग्लो का मैकेनिज्म ये है सर। और ये जो बैटरी होती है इसके पॉजिटिव से ऐसे करंट जाता है, पॉजिटिव से करंट जाता है, ऐसे होता हुआ एलईडी के थ्रू नेगेटिव में करंट एंटर करता है बैटरी। ओके, सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को नॉलेज दी है। और अब हमारे पास है ये असाइनमेंट। शाबाश, हैव यू असाइनमेंट विद यू? शाबाश, हमारे पास असाइनमेंट का टाइम बचा है, लेट्स कवर इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1, he says Arun went to the seaside. He collected some sea water for testing. He tested for some drinking water also, and also the sea water with the tester. He finds that tester needle detects more, deflects more in the sea water because, देखो बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास 2 गिलास हैं, एक में मैं समंदर का खारा पानी भरा है और एक मैंने टूटी वाला पानी भरा है, ओके। तो जब मैं इसके साथ एलईडी का एक्सपेरिमेंट करता हूं तो समंदर वाले पानी में एलईडी ज्यादा ग्लो करता है और टैप वाले में कम। ऐसा क्यों? क्योंकि समंदर के पानी में बहुत सारे साल्ट होते हैं, साल्ट फैक्ट्रियों से चले जाते हैं, लोग पोल्यूशन करते हैं और सारे साल्ट समंदर में चले जाते हैं, जबकि टैप वाटर में थोड़े बहुत साल्ट होते हैं, ओके। तो किस जिसमें साल्ट ज्यादा होगा उसमें आयंस ज्यादा होंगे, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे उसमें चार्ज ज्यादा हो गया। अब टीचर ने क्या सिखाया था? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो जिसमें चार्ज ज्यादा होगा करंट भी ज्यादा होगा, इसीलिए बल्ब ज्यादा ग्लो करेंगे किसमें? सी वाटर में, सी वाटर में, ओके। तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? ए, ड्रिंकिंग वाटर इज पुअर कंडक्टर, सी वाटर इज पुअर कंडक्टर, सी वाटर इज एन इंसुलेटर, सी वाटर इज salty एंड salt solution इज a गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन होता है। Everybody move to the second question. In the electrolysis of water, what are the products at the anode and the cathode? ध्यान से सुनो। अगर हम, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हम अकेला पानी ले लें, ओनली वाटर, ओके, ओनली वाटर, तो उसमें से मैं बैटरी लगाकर ऐसे ऐसे, बैटरी के इलेक्ट्रोड हम ऐसे लगाते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चला दिया बेटे, तो लॉन्गर साइड बैटरी की पॉजिटिव शो करती है और नेगेटिव। अब ये क्या होगा, ध्यान से सुना। ये जो वाटर होता है ना, वाटर, इसका फार्मूला मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, H2O। और बिजली के पास होने से इसमें आयोनाइजेशन हो जाती है, टूट जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में। एक होता है हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, एक होता है हाइड्रोक्सियल आयन OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सियल, इसको क्या बोला टीचर ने? हाइड्रोजन आयन। और H2O किसका फार्मूला होता है? वाटर का। OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं बेटे? हाइड्रोक्सियल आयन। तो इस पार्टिकल में, इस वाटर में जितने भी आयन्स होंगे उसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला देखते हैं, चलो पॉजिटिव वाला किधर को भागेगा? पॉजिटिव वाला नेचुरली नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। ध्यान से सुनो,
ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलेगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कैथोड। कैथोड उसको बोलेगा आप तो नेगेटिव है, और नेगेटिव आप इसीलिए हो क्योंकि आप बैटरी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन। तो आप मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो एक, ताकि मैं अपनी पॉजिटिव पोलैरिटी को कैंसिल कर सकूं, न्यूट्रलाइज कर सकूं। वो बैटरी उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो क्या होएगा, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन आयन उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो H में कन्वर्ट हो गया। फिर ऐसा ही एक दूसरा H आ गया, दो H आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बनेंगे। लेकिन इस हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को, हाइड्रोजन आयन को ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिया किसने, नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने दिया इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने अभी याद करा था। नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी तरफ पॉजिटिव पार्टिकल भागेंगे, यानी केटायन भागेंगे, और जिसकी तरफ केटायन जाते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इसका मतलब, अगर ध्यान से सुना, अगर मैं इसके ऊपर एक उल्टा करके टेस्ट ट्यूब लगा दूं तो यहां हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाए, किसके ऊपर, कैथोड पे। और अगर एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके यहां लगा दूं तो उधर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाए, ऑक्सीजन गैस। और H2 कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये है सारी मैकेनिज्म। यानी बच्चा बोलेगा सर दैट मीन्स पहले वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इन अदर वर्ड्स केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। ओके, तो इसका हमने आंसर दे दिया कि ये वाला हाइड्रोजन गैस कहां पर बनेगी, कैथोड पे। ओके, और एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन। तो हमारे ऑप्शंस में इसका बी ऑप्शन होगा, सेकंड क्वेश्चन का बी रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटे, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको समझाता हूं एक चीज। हाँ, देखो, मान लीजिए मेरे पास एक नेल है, लोहे की नेल, कील है, कील, नेल ऑफ आयरन, नेल ऑफ आयरन। जब मैं इसको खरीद के लाता हूं तो बिल्कुल शाइनिंग होती है, वेरी ब्राइट। मान लीजिए इस नेल को मैंने अपने घर के बाहर रख दिया और विंटर सीजन चल रहा है, तो इसके ऊपर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स का इफेक्ट पड़ेगा। किसका, मॉइस्चर का, मॉइस्चर, और किसका, ऑक्सीजन गैस का। अगर ये आयरन, नेल ऑफ द आयरन कहां पर, इज प्लेस्ड इन ओपन, इसको ओपन में रख दिया गया, तो ये एनवायरमेंटल पैरामीटर्स इसको इफेक्ट करेंगे। ये वाली जो शाइनिंग थी ना पहले नेल, शाइनिंग वाली नेल धीरे धीरे आप देखोगे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी रस्टिंग हो गया, RUSTING, रस्टिंग। इसको आप क्रोजन भी बोल सकते हो, क्रोजन। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ये एनवायरमेंटल पैरामीटर्स इफेक्ट ना करें, इसकी शाइनिंग बरकरार रहे। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, इस आयरन की कील के ऊपर एक और मेटल की परत चढ़ा देंगे, परत चढ़ा देंगे, एक परत चढ़ा देंगे। उस परत के ऊपर ये एनवायरमेंटल पैरामीटर्स उतना ज्यादा असर नहीं कर पाते। तो ये जो पतली सी परत मैंने चढ़ा दी किसी और मेटल की, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस से ये मेटल की परत चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इस वर्ड को ध्यान से देखो, परत का मतलब प्लेटिंग कर देना। कैसे करेंगे, बिजली की मदद से करेंगे।
इसलिए इलेक्ट्रो बिजली की मदद से इस कील के ऊपर एक परत चढ़ा दी जिससे इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली कील के ऊपर अब ये क्रोजन नहीं होगा, रस्टिंग हट जाएगी। वैसे अगर आप कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ये कौन सी मेटल होती है जो हम करते हैं इस तरह से, तो मैं बताना चाहूंगा बेटे वो मेटल होती है लोहे। आयरन के ऊपर हम जिस मेटल की परत चढ़ाते हैं ना रस्टिंग से बचाने के लिए, वो होती है जिंक। जिंक। और जब लोहे के ऊपर हमने ये परत चढ़ा दी तब येलो परत के साथ इस लोहे को फिर आयरन नहीं बोलेंगे, फिर आयरन नहीं बोलेंगे, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो हमारे घरों में पाइप होती है ना, पानी लेकर आती है, पानी घरों में टैप वाटर, वो जो लोहे की पाइप होती है वो गैल्वेनाइज्ड होती है। इसलिए सालों साल वो पानी के साथ टच रहते हुए भी उस पर रस्टिंग नहीं होती, जबकि कील पे रस्टिंग हो जाती है। समझ गए? तो वाटर सप्लाई पाइप्स आर ऑफ आयरन बट दे आर गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक एग्जांपल बताई टीचर ने, गैल्वेनाइज्ड आयरन बना लिया। ओके। अब देखो इसमें क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन, थर्ड क्वेश्चन, टू हीट द मेटल्स नो, to enhance the appearance and resistance to the corrosion, to dissolve the metal, to create the gases। कौन बच्चा बताएगा थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है? अगर ए ऑप्शन तो सिंगल फिंगर रेस करो, अगर बी ऑप्शन तो डबल, सी तो ट्रिपल, और डी ऑप्शन है तो फोर फिंगर्स खड़ी करो। शाबाश। व्हाट इज योर आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन में रेज योर फिंगर। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रसल का सेक्शन बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया, इस बच्चे का सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो बाकी बच्चे भी बता रहे हैं, लेकिन रसल स्टूडेंट्स आर बेटर फोकस्ड। तारीफ करनी पड़ेगी, पूरे स्कूल में सबसे बढ़िया बैच है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई बच्चा बोलता है सर आपने ना रस्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें तो अपीयरेंस भी बोल रखा है, वो भी सुन लो। अगर इस आयरन के ऊपर, अगर आयरन के ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग ना करके निकल की कोटिंग करी होती, निकल कोटिंग, तो वो आयरन बहुत शाइनिंग वाला सरफेस बन जाता है। कैसे? जो हम बाथरूम में शाइनिंग टूटियां खरीद के लाते हैं, टैप्स, सैनिटरी मटेरियल, टैप्स, तो वो वैसे बन जाता है फिर। ओके। और कभी आपने देखा हो बिल्कुल पुराने जमाने का जो साइकिल होता था वो कितना शाइन करता है, या जो बाइक का साइलेंसर होता है जहां से धुआं निकलता है बाइक का, वो कितना शाइनिंग होता है। अगर इतना शाइनिंग चाहिए हो तो हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम एंड अदर मेटल, क्रोमियम की मेटल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग हो जाएगा। इसलिए गुड लुकिंग के लिए टैप या टैप्स हो या साइकिल का हैंडल हो, मोटरसाइकिल का साइलेंसर हो, तब हम अपीयरेंस को इंक्रीज करते हैं। अगर लाइफ को इंक्रीज करना हो तो आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तब अगर अकेला जिंक की कोटिंग हो तभी इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलना है। आयरन के ऊपर निकल की कर दो तो नहीं बोलना गैल्वेनाइज्ड। आयरन के ऊपर क्रोमियम की बोल दो, कोटिंग कर दो, तो नहीं बोलना गैल्वेनाइज्ड। ओके। तो ये याद रहे, टीचर ने आपको एडिशनल नॉलेज दिया। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द फोर्थ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है अभी। इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रोलाइट एनोड एंड कैथोड आर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक फिगर दे रखा है, कह रहा है उसमें कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है।
ध्यान से सुनो बच्चे, उसने ना ऐसे करके दिखा रखे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो, इधर उसने पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा और इधर नेगेटिव प्लेट से जोड़ा। तो बैटरी के जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा होगा वो बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव चीज अपनी तरफ किसको खींचेगी? पॉजिटिव आयन को खींचेगी। पॉजिटिव आयन का क्या बताया था टीचर ने? केटायन। पॉजिटिव वाले पार्टिकल उधर को खींचेंगे। जिस तरफ कैटायन जाते हैं उस इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होता है, कैथोड। इसी तरह से ये क्या है? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन से पार्टिकल्स को खींचेगा अपनी तरफ? जो नेगेटिव आयन होते हैं। नेगेटिव आयन एनोन्स होते हैं, एनोन्स, एनायंस। एनायन जिसकी तरफ जाएं उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख दिया हमने? एनोड। ओके, तो याद रखना, ए फिगर के मुताबिक, फिगर के मुताबिक ए एनोड है और सी जो है वो कैथोड है, और ये जो बीच में लिक्विड है, लिक्विड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो, LYTE, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सभी बच्चों ने याद रखना है। इसमें उसने क्या पूछा था? इलेक्ट्रोलाइट। पहले पूछा उसने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बी है। फिर उसने पूछा एनोड, तो इसकी बी ऑप्शन होगी। फोर्थ क्वेश्चन की बी ऑप्शन। ओके बेटे, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। In the experiment, A is electroplated with copper. The anode would be, ध्यान से सुना, शाबाश 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 शाबाश। ये एक मेटल्स हैं, इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दी है हमने, कॉपर प्लेटिंग। ऐसे करते हैं, इसको हम शेयर दिखा भी देते हैं प्लेटिंग को। मान लीजिए ये ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई और ये कॉपर है। अब वो बोलते हैं जिसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करी, क्या वो पॉजिटिव रॉड है या नेगेटिव रॉड है? ध्यान से सुना। अब हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है दिया है? सॉल्यूशन कंटेनर में जो डालेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। सर इसका फार्मूला क्या होता है? ये लिखा हुआ है बेटे बुक में, असाइनमेंट में, CuSO4। जब इसमें बिजली पास करते हैं तो इस UuSO4 ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? कॉपर पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट नेगेटिव आयन, Cu2 पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर आयन। SO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना आप, अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने ये रखा है तो कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है? सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो कॉपर के आयन कैटायन बने, तो कैटायन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? नेगेटिव रॉड की तरफ। और नेगेटिव रॉड को हमने क्या बोला था? कैथोड। कैथोड। तो याद रखना, इस फिगर में, ठीक है, कैथोड की तरफ कॉपर जाएंगे, कॉपर के आयंस, राइट। तो वो बोलता है क्या है? इन दिस, इन ए प्लेट इज कोटेड विद द कॉपर। ओके, तो ए प्लेट जो है, हाँ तो ए लिख, ए उसने जोड़ा ही नहीं है, बैटरी का बताया तो है नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, है ना। बैटरी लिख रखी है फिगर में, अच्छे से बताया ही नहीं कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें हम अच्छे से बता ही नहीं सकते उसको। अदरवाइज आपने याद रखना है, ध्यान से सुना, कॉपर के आयंस नेगेटिव रॉड की तरफ जाएंगे और उस नेगेटिव रॉड को हम
कैथोड बोलेंगे, कैथोड। और वो नेगेटिव रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई, छोटी वाली लाइन, और पॉजिटिव से ये दूसरा रोड। ओके, तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए बेटे, राइट। एक और देख सकते हैं, 6 क्वेश्चन, चलो आप खुद करना 6 क्वेश्चन, ठीक है। 7 कोई ना कोई तो आपके लिए भी छोड़ना चाहिए मेरे को। 7 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड produces hydrogen gas at the cathode, chlorine at the anode। देखो ध्यान से सुनो, लेट्स एक्सप्लोर इट। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, लास्ट करने लगे हैं आज का। और आयोनाइजेशन होएगी बिजली का करंट पास करने पर। कैसे? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कौन से बन गए? नेगेटिव। क्लोराइड आयन नेगेटिव। सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटे, एक्सक्यूज मी सर। आई एम लिसनिंग बेटे, आई एम लिसनिंग। सर, सर आवर नेक्स्ट पीरियड हैज बीन स्टार्टेड। आज लास्ट पॉइंट बता रहे हैं बेटे, last। टाइम इज ओवर सर। आप जा सकते हो मैम, ये वाला सेक्शन जा सकते हो। ओके सर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनो बेटे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? योर अटेंशन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रॉड के पास जाएगा। पॉजिटिव रॉड, नेगेटिव होते क्या है? एनोड, एनायंस होते हैं। एनायंस जिसकी तरफ जाएंगे वो बनेगा एनोड, तो वहां जाके ये Cl बन जाएगा। ओके, तो Cl और Cl आपस में जुड़ेंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी। तो क्लोरीन गैस कहां पर बनी? एनोड पर। एनोड पर क्लोरीन गैस आएगी। ओके, तो याद रखना है, इसमें इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, 7th में डी। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, वो आप खुद करोगे। कौन सा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 और 8। और क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 6 एंड 8 होमवर्क। बाय बाय।